Our next topic is field due to a system of charges. कूलम लॉ में आपने पढ़ा था दो चार्ज के बीच में फोर्स। फिर आपने पढ़ा था व्हेन इन ए रीजन देयर विल बी लार्ज नंबर ऑफ चार्जेज, यानी इफ़ यू वांट टू फाइंड फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एनी पर्टिकुलर चार्ज ड्यू टू रेस्ट चार्जेज, तो उसमें हमने निकाला था कि जो है सभी के चलते फोर्स निकाल देंगे और सबका वेक्टर सम कर देंगे, विच इज नोन एज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. Again here we have topic is field due to a system of charges. Let us suppose in a region there will be large number of charges. Then at any particular point each and every charge will create its own field. Question is this: it means that first charge will create field, second will also create, third will also create, fourth will also create field at a particular point. Then question is this: what will be net field created by दो चार्जेज एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट? तो क्या करेंगे हम लोग, जैसे वहाँ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहे थे, अगेन हेयर वी हैव सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर फील्ड. वहाँ पर था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर फोर्स, बट हेयर वी हैव सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर फील्ड. देन क्वेश्चन इज दिस कि हाउ वी विल फाइंड फील्ड. अगेन फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो क्या करेंगे, सभी के लिए अलग अलग फील्ड निकालेंगे, फिर सबका वेक्टर सम कर देंगे. सेम इज गिवन हेयर. लेट अस सपोज इट इज योर कोऑर्डिनेट फ्रेम. हेयर यू हैव ओरिजिन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. लेट अस सपोज here we have charge q1, here q2, here q3, and let us suppose here we have point P. q1 is position vector of q1 is r1, that of q2 is r2, q3 is r3, and position vector of point P is rp. Question is this: what will be total field, what will be net field created by all these charges at point P? Then it is sure that according to principle of superposition, q1 will create field at P, q2 will also create, q3 will also create, and field is a vector quantity, so net field will be vector sum of all, E net equal to E1 plus E2 plus E3. First find values of E1, E2 and E3. E1, let us suppose we have considered E1 field created by charge q1. q1 के चलते पॉइंट P पर कितना फील्ड होगा, तो एक्सप्रेशन में आपने देखा फील्ड इक्वल टू E इक्वल टू 1/4πε0 सोर्स चार्ज डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. देन इट विल बी इक्वल टू 1/4πε0 q1 बाय डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम q1. तो हमने उसको दिखाया है r12P, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r12 का स्क्वायर. It is a vector quantity, electric field is a vector quantity, then what will be its direction? For direction, let us suppose we have considered all charges are positive, sorry, what will be direction? Then it is your, yes, consider all charges are positive. अभी आपने पढ़ा है field due to a positive charge is always away from the charge. Here you have q charge which is q1 charge which is positive, तो इसके चलते यहाँ पर field किधर होगा? That will be along this direction, along this direction. Field due to this will be along this direction. Value will be, तो उसको डायरेक्शन दिखाने के लिए हमने यूनिट वेक्टर लिया है r12p, r1p वेक्टर. In the similar manner, field due to charge q2, field due to charge q2 at point P. P पर फील्ड कितना होगा? It will be E2 हमने माना उसको, then E2 will be equal to 1/4πε0 q2 by distance of point P from 2 r2 to P, r2 to P का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर. Direction will be along this direction. It is again a positive charge, so field will be away from the charge along this direction. r2 P. Now find field due to q3. Then it will be equal to 1/4πε0 q3 into this distance r3 to P, magnitude of r3 to P का स्क्वायर into unit vector r3 to P, right? Then net field will be equal to vector sum of all these, because electric field is a vector quantity, so it will be equal to E net equal to E1 plus E2
ई नेट इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 विच इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 R12P स्क्वायर R1P यूनिट वेक्टर Q2 1/4πε0। सब कुछ वैसा ही आएगा, यहाँ Q1 की जगह Q2 हो जाएगा और R1P की जगह R2P हो जाएगा, यूनिट वेक्टर R2P। इन द सिमिलर मैनर फॉर 3 1/4πε0 Q3 बाय R3P का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R3P। कॉमन लोग बाबू सम ऑफ दिस सो समेशन 1/4πε0 Q1 हेयर Q2 हेयर Q3, सो यहाँ हमने लिख दिया QI R1P R2P R3P RIP का स्क्वायर इंटू R1P R2P R3P, सो RIP का यूनिट वेक्टर RIP, वेयर I इक्वल टू 1 to n। 1/4πε0 हमने बाहर ला दिया, 1/4πε0 समेशन ऑफ QI इंटू RIP का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर RIP। क्वेश्चन इज दिस, व्हाट विल बी इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होगा? तो जरा सा देख लो। तो लेट अस सपोज यू हैव ए ट्रायंगल, हेयर यू हैव चार्ज 1 Q1, हेयर यू हैव चार्ज Q2, ये A है, ये B है, ये C है। पूछा जाएगा व्हाट विल बी फील्ड क्रिएटेड बाय दीज टू एट पॉइंट P एट दिस पॉइंट, निकाल देंगे। यह भी अपना फील्ड बनाएगा इधर, यह भी अपना फील्ड बनाएगा इधर, देन नेट फील्ड विल बी वेक्टर सम ऑफ बोथ। अगर ये निगेटिव होता, ये पॉजिटिव होता, तो यह फील्ड जो है इसके तरफ होता, यह इसके तरफ होगा, नेट फील्ड विल बी वेक्टर सम ऑफ बोथ। राइट, समझ रहे हैं? लेट अस सपोज यू हैव ए स्क्वायर, एक चार्ज यहाँ, एक चार्ज यहाँ, एक चार्ज यहाँ, एक चार्ज यहाँ। व्हाट विल बी नेट फील्ड एट दिस वेरी पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल्स। यह भी चार्ज अपना फील्ड बनाएगा, यह भी बनाएगा, यह भी बनाएगा, यह भी बनाएगा, नेट फील्ड विल बी वेक्टर सम ऑफ ऑल। राइट, नाउ गो टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल? इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? आपने मैग्नेटिक डाइपोल पढ़ा होगा। A magnet is known as magnetic dipole. What is the meaning of this very dipole? Dipole is formed from two words, di plus pole. Di means two pole. मैग्नेट को दो पोल होता है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। दो पोल है मैग्नेट में, वही डाइपोल कहलाता है और मैग्नेटिक डाइपोल कहलाता है। तो उसमें क्या होता है, दो पोल है, दोनों पोल का अपोजिट स्ट्रेंथ है, दोनों पोल का इक्वल स्ट्रेंथ है, लेकिन अपोजिट नेचर का है और दोनों कुछ डिस्टेंस सेपरेटेड है। उसको कहे हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल। इन द सिमिलर मैनर हेयर, मैग्नेटिक पोल को हम लोग मैग्नेटिक चार्ज भी कहते हैं। और एक बात और सुन लो, मैग्नेटिक पोल को हम लोग मैग्नेटिक चार्ज भी कहते हैं और इलेक्ट्रिक चार्ज को इलेक्ट्रिक पोल्स भी कहते हैं। हेयर इलेक्ट्रिक डाइपोल मीन्स, हेयर इलेक्ट्रिक डाइपोल मीन्स इलेक्ट्रिक टू पोल मीन्स चार्जेज। इट मीन दैट जिस तरह से मैग्नेटिक डाइपोल में नॉर्थ पोल और साउथ पोल इक्वल स्ट्रेंथ का लेकिन अपोजिट नेचर का कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड होता है, इन द सिमिलर मैनर जब इलेक्ट्रिसिटी में दो इक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेज कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं, then we used to say they constitute electric dipole, and we used to write two equal and opposite charges separated by some distance constitute an electric dipole. Two equal and opposite charges separated by some distance constitute an electric dipole. दो इक्वल अमाउंट वाला चार्ज लेकिन अपोजिट नेचर का प्लस क्यू माइनस क्यू जब कुछ डिस्टेंस से सेपरेट होता है तो उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इट मीन दैट इट इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। दोनों का अमाउंट सेम है, क्यू क्यू, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। दोनों को ज्वाइन कर दो लाइन से, जो मिलाने वाली लाइन को है। दिस वेरी लाइन इज नोन एज डाइपोल एक्सिस, या दोनों चार से जो डाइपोल बन रहा है उसका मिलाने वाली लाइन को एक्सिस कहेंगे। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डाइपोल एक्सिस।
इन दोनों चार्ज के बीच में कुछ डिस्टेंस होता है, जनरली दैट दिस वेरी डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय साइन 2a और 2l। कह दोगे कि जो है 2l क्यों, 2a क्यों और 2l क्यों, वाई नॉट a वाई नॉट l, डिस्टेंस है, ऐसे दिखाएंगे, ऐसे भी दिखा सकते हैं, लेकिन 2a और 2l लिखने का कुछ खास मकसद हो जो आगे भी आएगा। One term is associated with this very dipole, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इस डायपोल से एक टर्म एसोसिएटेड होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। क्वेश्चन इज दिस, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो कहते हैं बाबू अगर यह डायपोल है तो इन दोनों चार्ज, डायपोल मोमेंट इसका जो होता है, दोनों चार्ज में से कोई एक चार्ज ले लो और दोनों के बीच में जितना डिस्टेंस है उन दोनों का इंटू कर दो, द क्वांटिटी विच यू विल गेट दैट इज नोन एज डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, it is product of either charge, it is product of either charge and distance of separation between the charges। दोनों में से कोई एक चार्ज और दोनों के बीच के डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होता है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इट इज डिनोटेड बाय साइन p, मीन्स p इक्वल टू q इंटू 2a। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड विल बी दिस p q इंटू 2a, and it is a vector quantity, then what will be its direction? Its direction is always from negative charge to positive charge. This dipole moment will be along this direction, whose magnitude will be this. Now come over field due to an electric dipole। क्या कोई इलेक्ट्रिक डायपोल फील्ड बनाता है? क्वेश्चन इज दिस कि क्या कोई इलेक्ट्रिक डायपोल फील्ड बनाता है? देन आंसर इज कि यस, इलेक्ट्रिक डायपोल फील्ड बनाएगा। क्वेश्चन इज हाउ, तो जरा ध्यान से देखना। लेट अस सपोज हेयर यू हैव माइनस क्यू चार्ज, हेयर यू हैव प्लस क्यू चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन दिस टू इज 2a। टेक दिस पॉइंट, नाउ टेल मी, दिस वेरी चार्ज विल क्रिएट फील्ड हेयर और नॉट? दिस वेरी चार्ज विल आल्सो क्रिएट फील्ड हेयर और नॉट? This very charge will create field here, this very charge will also create field here, then what will be net field created by this very dipole at this point? Then that will be vector sum of both, because field is a vector quantity. Here what will be net field at this very point? ये भी बनाएगा field यहाँ, ये भी बनाएगा field यहाँ, net field will be vector sum of both, right? Here we have to study about field due to an electric dipole. This very expression is very important. यूनिट टेस्ट में, हाफ ईयरली में, एनुअल में कई बार यह पूछा गया है। अब थोड़ा सा एनुअल में नहीं पूछा जाता है, लेकिन हाफ ईयरली में जो है और यूनिट टेस्ट में तो लगता है जनरली देते ही लोग हैं। नाउ कम ओवर फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो हम लोग को जो स्पेशल दो केस स्पेशल पढ़ना है बाबू। पहला जो है, फर्स्ट यू सी हेयर you have minus q charge and here plus q charge, both are separated by distance 2a, both are separated by distance 2a. It means that two equal and opposite charges are separated by some distance, so it is forming an electric dipole. This very line is known, line formed by joining both charges is known as axial line, so this very line will be axial line. Then when we find field, your first topic is field along dipole axis। यह जो डायपोल है उसका जो एक्सिस है, उसके एक्सिस पर जो फील्ड निकालेंगे, पहला हम लोग को यह पढ़ना है कि उसके एक्सिस पर फील्ड कितना होगा। और इस टर्म को जो हम लोग एक स्पेशल नेम देते हैं, दैट वेरी स्पेशल नेम इज इन डाउन पोजिशन। इट मीन दैट फील्ड वी हैव टू स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल फॉर इन डाउन पोजिशन। एंड सेकेंड वन इज योर on equatorial line perpendicular to dipole axis। इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है? यानी इट इज योर डायपोल, इसका सेंट्रल पॉइंट ये है, सेंट्रल पॉइंट से पास होता हुआ एक परपेंडिकुलर लाइन खींचो। इस पर जब अगर हम लोग डायपोल निकालेंगे, इस लाइन पर जब हम लोग डायपोल निकालेंगे, दिस वेरी लाइन इज नोन इक्वेटोरियल लाइन। और इक्वेटोरियल लाइन पर जब डायपोल फील्ड निकालते हैं, देन दैट इज नोन एज ब्रॉड साइड ऑन
position. So here we have to study about field due to both field for both end on position as well as broad side on position, right? First of all, we will find field for end on position. देखते जाना ध्यान से, बड़े आराम से समझ जाओगे. Your dipole is composed of two charges, so both charges will create field. Let us suppose it is your dipole and dipole axis is this. P is a point which is at a distance r from center of the dipole. Let it is your dipole whose distance is 2a, and P is a point at which we want to find field due to this dipole, which is at a distance r, a small r, from the center of the dipole, right? Question is this कि what will be field due to dipole. तो डायपोल का दोनों कंपोनेंट ये है, यही दोनों फील्ड बनाएगा. तो इन दोनों के चलते फील्ड निकाल दें, उसका नेट फील्ड निकाल दें. देन फर्स्ट फाइंड फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू. फील्ड ड्यू टू दिस एट दिस फ्री पॉइंट विल बी इक्वल टू फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू 1/4 pi epsilon 0. Sorry. 1/4 pi epsilon 0 q, this charge q into distance of this very point from this charge, this much. तो इतना तो r है और ये 2a है, ये मिड पॉइंट्स है, सो दिस विल बी a और नॉट. देन r प्लस a का स्क्वायर. इसीलिए 2a लिया जाता है क्योंकि यह डिस्टेंस सेंट्रल पॉइंट से लिया जाता है. तो हम लोग जो है a कर देते हैं. अगर a लेते तो a/2 हो जाता. कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी हो जाता. दैट्स व्हाई वी टेक हियर 2a. देन e माइनस क्यू इक्वल टू 1/4 pi epsilon 0 q by r plus a to the power 2. व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ फील्ड. तो फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, जरा सा ऐसे सोच करके देखो. यहाँ पर फील्ड निकालना है, यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखे. अगर ये प्लस क्यू चार्ज है तो यहाँ पर फील्ड जो है, जिधर ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उधर फील्ड होगा. तो इसके चलते किधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इधर होगा. इट मीन दैट फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज विल बी अवे फ्रॉम द चार्ज एंड इट इज योर निगेटिव चार्ज. इस निगेटिव चार्ज के चलते यहाँ फील्ड निकालना है. यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखे तो ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा. इट मीन दैट फील्ड ड्यू टू दिस एट दिस पॉइंट विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन. देन फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू विल बी अलोंग AP, along PA. And now come over field due to plus Q, then it will be equal to 1/4 pi epsilon 0 Q by this distance. यह डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इट इज योर r, इतना माइनस कर दो. देन इट विल बी इक्वल टू दिस डिस्टेंस r minus a to the power 2. व्हाट विल बी डायरेक्शन. यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर फील्ड किधर होगा, अवे होगा फ्रॉम B to P. सॉरी बाबू, B to P along BP. Now question is this, it means that here one field is along this direction, another field is along this direction. What will be net field? तो क्लास 8 में ही पढ़े हैं कि जो बड़ा होगा नेट फील्ड विल बी along that direction. तो दोनों में कौन बड़ा होगा. दोनों में 1/4 pi epsilon 0 है, दोनों में Q है. एक में r प्लस a का होल स्क्वायर है, एक में r माइनस a का होल स्क्वायर है. दोनों डिनोमिनेटर में है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो छोटा, जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो बड़ा. तो डिनोमिनेटर छोटा ये बड़ा है प्लस क्यू वाला, इसका मतलब इसके चलते यहाँ पर फील्ड अधिक होगा और इसके चलते फील्ड वीक होगा. मीन्स E प्लस क्यू इज मोर देन E माइनस क्यू. सो नेट फील्ड विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन. तो इसका बड़ा है यहाँ पर फील्ड विच इज अलोंग दिस डायरेक्शन, इसका फील्ड छोटा है विच इज अलोंग दिस डायरेक्शन. सो नेट फील्ड भी अलोंग दिस डायरेक्शन. इसके में से इसके मैग्नीट्यूड को माइनस कर दो. सो नेट फील्ड विल बी इक्वल टू E1 प्लस E प्लस क्यू प्लस E माइनस क्यू विच इज इक्वल टू, इसके वाले में माइनस है, प्लस क्यू वाले के वैल्यू में से छोटे वाले को माइनस क्यू वाले को माइनस कर दिए. तो होगा फील्ड किधर, क्योंकि ये वाला बड़ा था. सो फील्ड विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन अलोंग O to P, along OP. Now we have only calculation.
1/4πε0 कॉमन ले लो, देखो q दोनों में है, q कॉमन ले लो, 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4πε0 की कॉमन ले लिए हैं, टेक एलसीएम r माइनस ए का होल स्क्वायर r प्लस ए का होल स्क्वायर, here we will get r plus a का होल स्क्वायर माइनस and here we will get r minus a का होल स्क्वायर which is equal to 1 into q 4/4πε0, इसको ब्रेक कर दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, here we have माइनस पूरे पर होगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ra, लेकिन इस माइनस के चलते r स्क्वायर माइनस हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस हो जाएगा, a वाला प्लस हो जाएगा, कैंसल 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 कैंसल, 2ra प्लस 2ra 4ra, it means that it will be equal to q by 4πε0 2ra plus 2ra 4ra by r एंड r माइनस ए का होल स्क्वायर r प्लस ए का होल स्क्वायर दोनों पर होल स्क्वायर है तो पूरे पर होल स्क्वायर कर दो, r माइनस ए इंटू आर प्लस ए इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सो इट विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर which will be equal to q by 4πε0 4ra by r square minus a square which is equal to 1/4πε0। अब देखो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं q इंटू 2a, यहाँ से ले लो q इंटू 2a, तो यहाँ बचा क्या, एक r बचा और एक 2 बचा, इंटू 2r बाय r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, right? And now see here q into 2a equal to dipole moment p, can we write q into 2a either charge into product of the distance between them, होगा या नहीं होगा, तो ये p बन जाएगा। now once again come here when r will be very larger than a is this much distance half of the dipole, अब यह जो डिस्टेंस है अगर ये वाला डिस्टेंस ए से बहुत ज़्यादा बड़ा हो, बहुत बड़ा हो, मतलब डायपोल से बहुत दूर में फील्ड निकाल रहे हैं तो क्या होगा, व्हेन आर विल बी वेरी ग्रेटर देन ए देन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो अगर आर बहुत बड़ा है ये बहुत छोटा है तो आर स्क्वायर और बड़ा हो जाएगा और ए स्क्वायर छोटा ही रहेगा, तो जब इसमें से इसको माइनस करोगे वैल्यू विल बी नियर टू आर स्क्वायर, देन योर एक्सप्रेशन विल बिकम ई इक्वल टू 1/4πε0 q इंटू 2a इक्वल टू p इंटू 2r बाय ये तुम्हारा आर स्क्वायर बन गया है, देन आर स्क्वायर का होल स्क्वायर r टू द पावर 4, एक आर कैंसिल कर दो, देन इट विल बिकम 1/4πε0 p इंटू 2 p में 2p बाय एक आर से एक आर कैंसिल हुआ आर क्यू, एंड व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, देन दैट विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन OP डायरेक्शन, it means that it will be equal to E equal to 1/4πε0 2p by r cube, this very electric field is a vector quantity, अगर वेक्टर क्वांटिटी दिखा रहे हो तो वेक्टर के फॉर्म में कैसे दिखा दोगे, तो यहाँ तो हम लोग जो एलोंग OP और एलोंग AP करके दिखा रहे हैं इसी से दिखा सकते हैं, क्यों, बिकॉज डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज फ्रॉम निगेटिव साइड टू पॉजिटिव साइड, इट इज फ्रॉम निगेटिव साइड टू पॉजिटिव साइड, अब फोर्स भी तो नेट फोर्स इधर ही हो रहा है, तो अगर हम लोग P पर डायरेक्शन दे दें देन इट विल कम इन वेक्टर फॉर्म, देन वी यूज टू राइट एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल ऑन एक्सियल लाइन इज E equal to 1/4πε0 2p by r cube, right? One more is left. Field on broad side on position means on equatorial line, इक्वेटोरियल लाइन पर फील्ड कितना होगा, जरा सा इसको देख लो, लेट अस सपोज here we have two charges, here we have an electric dipole minus which is composed of two charges minus q and plus q which are separated by distance 2a, देख रहे हो माइनस q है प्लस q है 2a डिस्टेंस से सेपरेटेड है, it will an electric dipole or not, and let us suppose then this will be dipole axis, इस डायपोल एक्सिस के परपेंडिकुलर हमने एक लाइन ड्रॉ किया, रियली इट इज प्लेन लेकिन यहाँ पर लाइन देखने में लगेगा, let us suppose P is a point which is at a distance r from the center of the dipole, अगर ये सेंटर है तो ये A हो जाएगा, ये भी A हो जाएगा,
और यहाँ से r डिस्टेंस पर पॉइंट P है, यहीं पर फील्ड निकालना है पॉइंट P पर। तो यह भी अपना फील्ड बनाएगा, यह भी अपना फील्ड बनाएगा। देन नेट फील्ड ड्यू टू डाइपोल विल बी इक्वल टू फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू प्लस फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू, एंड दैट विल बी इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ बोथ फील्ड्स। तो पहले बता दो इसके चलते फील्ड यहाँ पर कितना होगा। देन ई ड्यू टू माइनस क्यू इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाय दिस डिस्टेंस। क्वेश्चन इज दिस के व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस। Then now see, it is your right angle triangle, it is your r, it is your a, so this very distance will be equal to r square plus a square का रूट। देन और यहाँ पर होगा इस डिस्टेंस का स्क्वायर, तो स्क्वायर करोगे तो रूट खत्म हो जाएगा। देन इट विल बी इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाय r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। क्वेश्चन इज दिस के व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ फील्ड। देन हेयर वी हैव निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज के चलते फील्ड टुवार्ड द चार्ज होता है, तो इधर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो यह निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगा। इट मीन दैट फील्ड विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन, सो इट विल बी अलोंग P to A, PA, अलोंग PA। नाउ गो टू E ड्यू टू प्लस क्यू, इट विल प्लस क्यू के चलते यहाँ पर फील्ड, देन इट विल बी इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाय दिस डिस्टेंस। तो जैसे ये इतना होगा उतना ही ये, और इसका स्क्वायर तो ये भी बन जाएगा, जैसे ये बना r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये भी हो जाएगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। बट डायरेक्शन इट इज योर पॉजिटिव चार्ज, सो फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज एट दिस वेरी पॉइंट विल बी अवे फ्रॉम द चार्ज, इट मीन दैट इट विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन, अलोंग B to P, इस डायरेक्शन में, अलोंग BP। माइनस क्यू के चलते फील्ड हो गया, प्लस क्यू के चलते फील्ड हो गया। देन व्हाट विल बी नेट फील्ड एट पॉइंट P, देन वी यूज टू राइट नेट फील्ड एट पॉइंट P विल बी इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ बोथ। दो तरीका निकालने का तरीका है, पैरेललोग्राम लगाओगे दो, स्क्वायर ऑफ दिस प्लस स्क्वायर ऑफ दिस प्लस 2 इंटू दिस इंटू कॉस थीटा। और दूसरा तरीका है कि इसको जो है और इसको दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ब्रेक कर दो, इसको इधर और इधर और इसको इधर और इधर। देखो तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आया है, लेट अस सपोज ई, तो अगर ये ई है तुम्हारा, वन मोर थिंग, लेट अस सपोज दिस वेरी एंगल इज थीटा, दोनों बराबर बराबर है, तो ये जो दोनों का रिजल्टेंट होगा एकदम सीधे बीचों बीच भागेगा, विच विल बी पैरेलल टू द एक्सिस। तो अगर ये एंगल थीटा लेते हो, ये इसके पैरेलल है, तो दिस विल बी ट्रांसवर्सल, सो दिस एंगल विल बी आल्सो थीटा। और यह बीचों बीच में है, तो अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, और नॉट। तो अब जरा सा देखो तो, अगर ये तुम्हारा ई है तो इधर हो जाएगा ई कॉस थीटा, इधर हो जाएगा ई साइन थीटा। ये वाला ई है तो इसका इधर कंपोनेंट हो जाएगा ई कॉस थीटा, थीटा के तरफ ई कॉस थीटा, और अपोजिट वाला जो है ई साइन थीटा, और ना। इट मीन दैट नाउ वी हैव 4 फील्ड्स एट पॉइंट P, ई साइन थीटा, ई साइन थीटा, ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा। दीज टू आर अपोजिटली डायरेक्टेड, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, बोथ विल कैंसल ईच अदर। इट मीन दैट, लेकिन ये दोनों कैंसिल नहीं करेगा बिकॉज बोथ आर अलोंग द सेम डायरेक्शन, सो नेट फील्ड विल बी इक्वल टू ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा along this direction along B to A. So it will be equal to e cos theta plus e cos theta 2 e cos theta along BA, which will be equal to 2 into your E is, दोनों बराबर हैं, इतना होगा 1/4πε0 q by r square plus a square into cos theta. What will be value of cos theta? Then find cos theta from here. यहाँ से cos theta पता कर लो. It is a right angle triangle. It is your theta. So cos theta equal to b by h, a by r square plus r square plus a square, a by r square plus a square का square root, which will be equal to 2 into 1/4πε0 q into a, qa by r square plus a square, square root of r plus a square. A half power, a 1 power, 1 power and half power, 3/2 power. So 2 into 1/4πε0 q into a by r square plus a square, 3/2. Once again see here q, now see here q into 2a, q into 2a will be equal to p or not. So E net will be equal to 1/4πε0 p by
आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2 along B2A along BA। अगेन इट विल बी इक्वल टू, ये बाबू हम लोग अभी डायरेक्शन दिखा रहे हैं, बी और बी के तरह जो है, पी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, पी के हम लोग डायरेक्शन में दिखा सकते हैं, पी जो डायपोल मोमेंट वेक्टर विच इज ऑलवेज अलोंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव बट फील्ड इज फ्रॉम दिस टू दिस, सो कैन बी से फील्ड विल बी अपोजिट टू पी। तो इस पी पर वेक्टर दिखा करके माइनस साइन दे देंगे तो अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा, सो इट विल बी इक्वल टू -1/4πε0 वेक्टर पी बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। कम ओवर वन स्पेशल केस व्हेन आर विल बी वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, जब आर ए से बहुत बड़ा होगा, देन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये बहुत बड़ा, ये भी स्क्वायर हुआ और बहुत ज़्यादा बड़ा, ये भी बड़ा, ये भी स्क्वायर हुआ, बड़ा हुआ, लेकिन इसके कंपेरिजन में बहुत छोटा है, सो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विल बी वेरी वेरी नियर टू आर स्क्वायर, सो ई नेट विल बी इक्वल टू -1/4πε0 पी बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया है, इट मीन दैट आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, पावर 2 to cancel r to the power 3, it means that E net will be equal to -1/4πε0 p by r cube। जरा ध्यान से देखो, E net will be equal to -1/4πε0 p by r cube, but here E net equal to 1/4πε0 2p by r cube. Here we have 2, but here we don't have p. Here we have plus sign, but here we do have minus sign. It means that in this very case E net will be opposite to p, but here E will be along p. Again here E is inversely proportional to r cube. Again and here also E is inversely proportional to r cube. Question is this, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन में देखा था E is inversely proportional to r स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकाल रहे हैं बट ड्यू टू डायपोल, बट यहाँ पर जो आ रहा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू आ रहा है, E is inversely proportional to आर क्यू। क्वेश्चन इज वाई। तो उसको जानने के लिए जरा सा जान लो, सी दिस वेरी फिगर, इसके भी चलते यहाँ फील्ड होगा, इसके भी चलते यहाँ फील्ड होगा, इससे दूर जाओगे फील्ड घटेगा, इससे दूर जाओगे फील्ड घटेगा, बट माय डियर जरा ध्यान से सुनोगे, इसके चलते यहाँ फील्ड पॉजिटिव, इसके चलते यहाँ फील्ड निगेटिव, नो डाउट दूर भागेंगे तो घटेगा, लेकिन दोनों के चलते एक का फील्ड पॉजिटिव इधर, एक का फील्ड इधर, दोनों के चलते फील्ड यहाँ कम हो गया। यहाँ और जाओगे तो इसके भी चलते घटेगा, इसके भी चलते घटेगा, लेकिन एक प्लस एक माइनस एक इधर घट करके और ज़्यादा कम हो जाएगा। इसका मतलब घटने का जो रेट हो जाएगा दैट विल इंक्रीज इन केस ऑफ डायपोल, राइट। थैंक यू।